Good morning, everyone. Myself, Meenakshi Gurjar, Assistant Professor in Government Girls College, Jhalawad. A very warm welcome to all my students. In today's class, we will focus on metal-ligand bonding. Before entering in this topic, I would want to tell about metal ligands. Metal ligand complexes. What are the metal ligand complexes? A complex which are formed by the metal. Usually transition metals are used here, and ligand that are called metal ligand complexes. These are also called as coordination compounds. Coordination compounds, its mean coordination compounds. Why we say coordination compound? Coordination compounds means the compounds which have coordination bond. Coordination bond is a type of a covalent bond. You can see that modification of a covalent bond. Generally a simple covalent bond is formed by the overlapping of two atomic orbitals which contain each one electron. And here sharing of two electrons will occur, but in case of coordination bond, in case of coordination bond, ligand, a ligand which have occupied atomic orbital and a metal which have unoccupied atomic orbital, overlap between metal and ligand will occur. And here also sharing of electrons occur, but here sharing from one atoms, sharing electrons will be from one atom, that is ligand, and these are called as coordination compounds. Now, theories of bonding in coordination compounds. There are mainly three theories which are used to describe the nature of metal ligand bonding in coordination compounds. First theory है VBT, valence bond theory. This theory was developed by Linus Pauling and others in 1930. Second theory is crystal field theory. This was proposed by Hans Bethe in 1929. And third and last is ligand field theory or molecular orbital theory, and it is a very modern theory. This was developed by G.H. von Vleck in 1935. Now comes on VBT, valence bond theory. Valence bond theory was the first theory used to explain the geometry and magnetic property of many coordination compounds. We can explain the geometry and magnetic property of many coordination compounds with the help of VBT. The basic idea behind this theory is that formation of a complex is a reaction between a Lewis base and a Lewis acid. इसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, हियर मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द Lewis base. Here ligand which has electrons, which has more electron density, behave as electron donor, and we call it as ligand. And सेकेंड इज लीविस एसिड. लीविस एसिड क्या होगा? मेटल. जो मेटल होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि मेटल जो होगा उसके कैसे होंगे? अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होंगे. अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स यानी कि खाली ऑर्बिटल्स हैं, उसकी ओवरलैपिंग हो रही है. अ बॉन्ड विल फॉर्म आफ्टर द ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स. बॉन्ड हमेशा टू ऑर्बिटल्स, एटमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बनता है. एंड इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन, लीगेंड एटमिक ऑर्बिटल विल बी फिल्ड. इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड जो मेटल ऑर्बिटल है वो आपका अनऑक्यूपाइड यानी खाली होगा, और उसमें क्या होगा कि वो डोनेट करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन लीगेंड्स और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड ऑल्सो. एंड अब हम इसके पढ़ेंगे एजम्पशंस वीबीटी के. फर्स्ट है the central metal atom or ion provides number of vacant s, p and d orbitals equal to its coordination number to form coordination bond with the ligand orbital. Central metal atom जो होगा उसके पास उसके अनऑक्यूपाइड एटमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और अनऑक्यूपाइड एटमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे यानी खाली एटमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए. कौन कौन से होंगे? एस, पी एंड डी. और होंगे कितने के? जितने उसके पास लीगेंड्स आ रहा है, जितने लीगेंड्स. और हम यहाँ बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर. व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? द नंबर ऑफ लीगेंड्स, the number of ligands in a complex is called as coordination number. Suppose Ml6 is a complex. Here M is a central metal atom and ion, and L is a ligand. Here ligand number is 6. For example Ml6, here ligands का number कितना है? 6 है. Then coordination number of this complex will be 6. तो 6 ligands आ रहे हैं. हर एक ligand जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा.
2 इलेक्ट्रॉन देगा, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है। तो मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन्स अनऑक्यूपाई होनी चाहिए? मेटल्स के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स अनऑक्यूपाइड इनके खाली रहने चाहिए। तो ये इसका एक फर्स्ट एजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको जब ये इसका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन बताऊंगी तो उसमें आप ये समझेंगे। सेकेंड इज ईच लिगेंड हैज़ एट लीस्ट वन एस ऑर्बिटल कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लिगेंड है तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन पेयर तो इसके पास होना ही चाहिए। थर्ड इज the empty orbitals of the metal atom or ion undergo hybridization to form same number of hybrid orbitals। इसमें ये भी है कि मेटल एटम और आयन है, उसके ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स उतने अनऑक्यूपाइड होनी चाहिए एसपीडी में से, जैसे कि 6 लिगेंड्स आएंगे तो 6 है, 4 लिगेंड्स अगर उसके पास आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तो 4 उसके पास ऑर्बिटल्स अनऑक्यूपाइड होने चाहिए। बट इसके लिए क्या होगा, पहले एक प्रोसेस होगा हाइब्रिडाइजेशन। बिफोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन विल टेक प्लेस। हाइब्रिडाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज बिफोर हाइब्रिडाइजेशन suppose 4 orbitals are there, sp d2 hybridization, and you can say that dsp2 hybridization takes place. dsp2 hybridization, suppose dsp2 hybridization takes place, here 1 d orbital, 1 s orbital and 2 p orbitals are involved during complex formation. But here in this case, here these 4 orbitals are having different structures and different energies. But you know that when bonding occur, then bond angle in a molecule will remain same. Why? Because hybridization process will be occur before overlapping, बिफोर अ बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसी वजह से पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोसेस में, उतने ही सेम नंबर में आपको एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे विच हैव सेम ज्योमेट्री, सेम एनर्जीज। ओके, एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं, अब उतने ही नंबर में बनेंगे। ओवरलैप, अब ये ओवरलैप करेंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगी, आफ्टर इट ओवरलैपिंग प्रोसेस विल बी हैपन, एंड आफ्टर ओवरलैपिंग अ बॉन्ड विल बी, अ कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। Overlap with the filled orbitals of the ligands to form ligand to metal coordinate bond. लुक एट हियर L2M, ये आपको एक साइन दिखा रखा है, ये जो है इस तरह से एरो दिखा रखा है, ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दिखाने का हमारा तरीका है कि, और ये जो इसमें एरो है वो क्या दिखा रहा है आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, लिगेंड टू मेटल हो रही है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। अब इसका फोर्थ एजम्पशन आता है कि द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स। जो कॉम्प्लेक्स होगी उसकी ज्योमेट्री किसके ऊपर डिपेंड करेगी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स के ऊपर। ये अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन मे बी आइदर इनर n-1 d ऑर्बिटल्स और आउटर n d ऑर्बिटल्स। The complexes thus formed are referred to as low spin और high spin complexes respectively. यहाँ पे 2 टर्मिनोलॉजी आई है, लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट आर द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस? अ complex will be formed when metal d orbitals, मेटल के डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो कौन से टाइप के होंगे, अगर इनर डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तब तो ये हो जाएगा आपका लो स्पिन, एंड इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स पेयरिंग विल बी हैपन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम रहेंगे। जब इनर इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं तो उसकी पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम रहेगा, एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस एज रेफर्ड एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे किसके ऊपर, लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये जो दोनों ही किसके ऊपर बेस्ड होंगे, नेचर ऑफ लिगेंड के ऊपर। इफ़ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड will form complex with the same metal, then a low spin complex will be formed. And if another ligand which is a weak field ligand, then it comes towards the metal, then which complex will be formed, which is called as high spin complex. It means high spin complex always formed when the weak field ligand will attack towards metal, iron and metal. And if strong field ligands coming towards metal, ion and metal, then low spin complex will be formed. If the complex has paired electron, then it is called as diamagnetic. अब 2 terminology और है, diamagnetic and paramagnetic. Diamagnetic means if a complex have paired electron, then it is called as
diamagnetic, and if a complex having one and many unpaired electrons, then it is called as paramagnetic complexes. This is a table in which different type of hybridization coordination compounds are shown. देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दिखाया है CN. दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर. इट्स मीन हाउ मेनी लीगेंड्स आर अटैच टू अ मेटल. यहाँ 2 लीगेंड्स अगर मेटल के पास आ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं. एग्जांपल में देखिए यहाँ पे आपको 2 ही लीगेंड्स दिखाई दे रहा है. Ag है जो वो आपका मेटल है, और यहाँ पे अमोनिया जो आ रहा है वो आपका क्या हो गया, लीगेंड. और नंबर ऑफ लीगेंड्स यहाँ पे 2 है, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है. हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp टाइप एंड ज्योमेट्री लीनियर एंड डायगोनल होगी. इस टाइप से ये पूरा आपका ये टेबल है जिसमें आपको ये सब चीज़ बता रखी है. अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी. एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी हम देखते हैं. हमने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि वी कैन एक्सप्लेन जियोमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंड जियोमेट्री स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ वीबीटी. तो यहाँ पे हम सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे जिनके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स कि नंबर ऑफ लिगेंड्स विल बी 6 हियर. कॉम्प्लेक्सेस विच हैव 6 लिगेंड्स. दीज कॉम्प्लेक्सेस हैव ऑक्टाहेड, और इनकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इनकी. इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 हो सकता है एंड d2sp3 हो सकता है. d2sp3 हम d को अगर पहले लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ इनर ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन आर यूज्ड, देन इट इज़ रेफर्ड एज d2sp3 hybridization, and if outer d orbitals are involved in hybridization process, then sp3 d2 hybridization will take place. अब यहाँ हम देखते हैं सबसे पहला हमारा आता है d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और किस में होगा ये, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होंगे. एंड लीगेंड का कौन सा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीगेंड होना चाहिए. तभी क्या होगा इसमें कि पेयरिंग होगी और इनर डी ऑर्बिटल्स जो होंगे वो मेटल वो यूज़ कर पाएगा. दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस इन दोज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस विच कंटेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. अभी मैंने बताया आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होना चाहिए, एंड साथ में ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होने की वजह से इनर डी ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे. यानी कि इनर डी ऑर्बिटल्स इसके पास ऑक्यूपाई रहना चाहिए, खाली रहनी चाहिए. तो खाली रहने के लिए पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी. एंड दीज आर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेस होंगे यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देंगे. और स्पिन पेयर्ड इसलिए बोल दिया क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाती है. Spin paired octahedral complexes due to lesser number of unpaired electrons. And second is, for the formation of octahedral complex through d2sp3 hybridization, the metal have 2 3d orbitals. देखिए यहाँ पे 3d orbitals हैं, यानी कि n-1d orbitals are involved here. 1 4s orbital and 3 4p orbitals empty होंगे. यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना था वो मैंने पहले ही बताया था कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो हो रहा है इन कॉम्प्लेक्सेस में हो रहा है, लेकिन क्या होंगे कि मेटल जो आप यूज़ में ले रहे हैं उसके ऑर्बिटल्स अनऑक्यूपाइड होने चाहिए यहाँ पे. और अनऑक्यूपाइड है इसके यहाँ पे 2 3d 1 4s एंड 3 4p, बिकॉज हियर कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग विल टेक प्लेस. इन द डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल C(OH3) का होल +3, हियर अमोनिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बताया 3d6 से. अभी मैं आपको डायग्राम से और अच्छी तरह से बताती हूँ इसे. देखिए ये है आपका हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड आयन. सबसे पहले आप देखिए कोबाल्ट आयन का क्या होता है. कोबाल्ट जो मेटल है या एटम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये मेटल एटम है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2 +3. इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने निकाल दिए हैं, 2s के निकल जाते हैं और एक यहाँ से d का निकल जाता है. अब यहाँ आपने देखा लीगेंड्स क्या है, हमें पता है. अब आप यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे स्ट्रक्चर, बिल्कुल इजी है. यहाँ देखिए आप कि यहाँ पे लीगेंड्स कितने हैं. हाउ मेनी लीगेंड्स आर अटैच्ड टू मेटल, हियर 6 लीगेंड्स are attached to metal and will form a complex. So you should keep in mind that 6 or metal orbitals will be unoccupied. आपको 6 metal orbitals unoccupied करने होंगे. और यहाँ पे आपके पास 4 ऑर्बिटल्स तो पहले से ही हैं, यानी कि 1s है और 3p है. अब आपको 2 ऑर्बिटल्स चाहिए. और अब आपका ध्यान जाएगा कि यहाँ पे लीगेंड्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है अमोनिया. इसके केस में फिर क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी और 2 ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस. एंड फिर ये जो अनऑक्यूपाइड मेटेलिक ऑर्बिटल्स जो हैं ये, इनमें पहले हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगी. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन 6 d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड.
दीज आर ऑफ सेम नेचर के होंगे, या सेम ज्योमेट्री होंगी इनकी, सेम एनर्जी होंगी यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये लीगेंड्स जो होंगे, एक अमोनिया जो लीगेंड है वो कौन सा देगा, एक लॉन पेयर है और एक ही लॉन पेयर देता है, मतलब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, तो एक लीगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक एटमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिए एक लीगेंड ने। तो इस तरह से इसके पास 6 ऑर्बिटल्स हैं, तो कितने लीगेंड्स देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, जो लीगेंड्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे यहाँ, और इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। और ये इसकी शेप यहाँ दिखा रखी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। Now CO+3 provides 6 empty of orbitals to accommodate 6 pairs of electrons to form 6, ये मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ। अब देखिए, हमने बोला था कि दिस कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक नेचर। डायमैग्नेटिक नेचर का क्यों होगा, लुक एट हियर, CuNH3 का होल 6+3, आफ्टर कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड हियर, no unpaired electron is available in this case, so this complex will be of diamagnetic nature. Now second is sp3d2 hybridization in outer orbital octahedral complex। अगर वीक लिगेंड आ रहा है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल होंगे आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा यहाँ पे। एंड दीज कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाई स्पिन और स्पिन फ्री octahedral complexes due to greater number of unpaired electron। ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है इसका, hexafluorocobaltate ion। Look at here, in both complexes metal ion will be same। इन फर्स्ट जो आपने देखा था अमीन कॉम्प्लेक्स देखा था, कोबाल्ट का ही था, वहाँ पे भी कोबाल्ट ही मेटल थी, यहाँ पे भी आपकी कोबाल्ट ही मेटल है, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, हियर लीगेंड इज़ फ्लोराइड एंड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो आपने अर्लियर पढ़ा है वो उसमें था अमोनिया लीगेंड। ये आपका कौन सा लीगेंड हो जाएगा, स्टार्टिंग देखें यहाँ से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं, कोबाल्ट आपने बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया वही 3d7 4s2, एंड कोबाल्ट मेटल जो है वो +3 ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये वीक लिगेंड है, तो यहाँ पे आउटर डी ऑर्बिटल जो होंगे वो इन्वॉल्व होगा उनका हाइब्रिडाइजेशन में, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से हो गया है, और फिर ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं। फिर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा बाय ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे फ्लोराइड आयन। अब आप देखिए इस कॉम्प्लेक्स में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 1 2 3 4 unpaired electrons are present in this complex, and due to presence of unpaired electron it complex is behave as a paramagnetic, and this complex is of paramagnetic nature। यहाँ पे आपका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अब ये बताया कि वीक लिगेंड्स जो होते हैं वो एंटी इलेक्ट्रॉन ही क्यों यूज़ करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन क्यों यूज़ नहीं करते हैं वहाँ पे, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्या होती है कि ये इनके अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो क्या कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स को सेम शेल में फोर्स नहीं कर पाते हैं, सेम शेल में फोर्स नहीं कर पाते हैं, सो वी यूज़ एंटी ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर शेल। एंड ये आपको बता ही दिया गया है कि 1s हैं, 3 4p एंड 4। अब यहाँ देखिए, लुक एट हियर, 4d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन केस ऑफ फ्लोराइड आयन कॉम्प्लेक्सेस जो बन रहा है, तो यहाँ पे 4d यानी एंटी ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, तो आपके पास sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ है, एंड कॉम्प्लेक्स इज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू।